ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، قربانی کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، اور قربانی کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جانور کو کس طرح سے قربان کیا جائے، قربانی کرنے کے جانور کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں، عورتیں خود سے قربانی کر سکتی ہیں یا کسی بھی جانور کو عورت اگر ذبح کرے تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے۔ یہ صرف قربانی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عام حالات میں بھی اگر عورت نے قربانی کیا ہے تو اس قربانی کے گوشت کو، یا عورت نے جانور کو ذبح کیا ہے تو عورت کے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت، پرندے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ عورت کے ذبح کرنے کی وجہ سے گوشت مکروہ ہو جاتا ہو یا اس میں کسی طرح کی کراہت آ جاتی ہو، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ جاہلیت میں یہ رواج رہا ہے، اور قوم یہود کے یہاں بھی یہ چیز تھی کہ قربانی کر کے وہ لوگ جاہلیت میں قربانی کے جانور کا جو خون نکلتا تھا اس کو کعبے کی دیواروں پہ لگا دیا کرتے تھے۔ قوم یہود کے یہاں بھی جو قربانی، اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ قربانی کا تصور ہر قوم میں موجود ہے، تو قوم یہود کے یہاں بھی جو قربانی رہی ہے تو یہ لوگ بھی جہاں قربانی کرتے تھے تو قربانی کے جانور کے خون کو چھڑک دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے رہی ہیں، اس طرح کا جو ہے عمل رہا ہے جاہلیت میں، اور جو ہے غیر مسلموں کے یہاں، بعض مسلمانوں کی طرف سے، چونکہ جاہلیت میں اس طرح کا عمل انہوں نے دیکھا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی قربانی کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آئی کہ اگر ہم ایسا کریں، قربانی کے جانور کو ذبح کر کے جو بھی گوشت جو اس کا خون ہوتا ہے وہ خون جو ہے کعبے کی دیواروں پہ لگائیں، یا جہاں پہ قربانی کرتے ہیں وہاں چھڑکے، یا جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ان کو لا کر کے جانور کے پر جو ہے ہاتھ پھیرنا، یا جانور سے آ کر کے اس کو ٹچ کرانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس آیت کی شان نزول لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تقوی تمہارا پہنچتا ہے، وہ اخلاص اور وہ جذبہ قربانی، جس جذبے کے تحت قربانی کی گئی ہے، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ یعنی اس کی اہمیت ہے کہ کس اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور قربانی کے جذبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ عبادت پیش کی گئی ہے، اصل یہ چیز جو ہے دیکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کی اہمیت ہے، اس کا گوشت، اس کا خون،
ये तो सब की सब यही ज़मीन पर समा जाता है। और इसका ताल्लुक तो इंसानों से है कि गोश्त खुद खा लेते हैं लोग, अल्लाह ताला के यहाँ ये गोश्त नहीं पहुँचता है। तो ये असल आयत जो नाजिल हुई थी वो इसी तरह के जो ख्यालात थे लोगों के, और इस तरह की जो लोग चाहते थे इस तरह की चीज़ें, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिरे से इस्लाम में खारिज कर दिया कि इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये बात भी याद रखिए, अक्सर लोग ये सवाल करते रहे हैं मुझसे कि कभी लोग क्या करते हैं, नज़र मान लेते हैं सदका करेंगे, तो कुर्बानी करेंगे, सदका सदका करना ज़्यादा अच्छा है। ये बकरीद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आम दिनों में कुछ होता है, नज़र मान लेते हैं सदका, जानवर सदका किया। तो अब वो जिसकी तरफ से नज़र माने हुए होते हैं, यानी कि अगर ये जो है घर लौट आए, सेहतमंद हो गए, कामयाब हो गए, इस तरह से जो है नज़र मुअल्लक़ जिसे कहा जाता है, वो जो नज़र माने हुए होते हैं। तो अब वो चूँकि उनकी नज़र जो है, उनकी तरफ से जो नज़र मानी गई थी, उसके उसके लिए जानवर है, तो बाकायदा ये समझते हैं कि ला कर के उस आदमी को, उस जानवर को जो है टच कराया जाए, जानवर को ले जाकर के उस आदमी से टच कराया जाए, या वो आदमी जो है जानवर के ऊपर अपना हाथ फेरे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है इस्लामी शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पहले एक बात ज़िक्र की थी, आपको वो भी याद होगी कि जैसे बाज़ लोग ये समझते हैं कि कम से कम जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, वो वहाँ पर मौजूद रहे। उसका मौजूद रहना, उसकी हाज़िरी भी, ऐसा कुछ नहीं है, शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये ख़ास तरीके से खून वग़ैरह तबर्रुक समझ कर के लगाना, कहीं कुछ करना, तो ये तो बिल्कुल जो है, जब दीन का हिस्सा समझ कर के करेंगे, तो याद रखिए कम से कम दर्जा जो मिलेगा वो बिदअत का दर्जा तो मिलेगा उससे, वरना तो ये चीज़ शिर्क तक भी पहुँचा सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब मसला होता है इसके बाद गोश्त का। कुर्बानी के जानवर के गोश्त के बारे में जो आज का असल दर्स है हमारा, ये तो पिछला दर्स हम आपको याद दिला रहे थे। तो गोश्त की तक़सीम का तरीक़ेकार क्या हो, और गोश्त जो है ज़ख़ीरा करके रख सकते हैं, यानी गोश्त को जैसे पहले लोग सुखा करके रखते थे, आज के दौर में चूँकि उनके पास जो है फ्रिज मौजूद है, फ्रीज़र मौजूद है, रेफ्रिजरेटर मौजूद है, तो उसमें जो है गोश्त को महफूज रखा जा सकता है और काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है। तो इस तरह से गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को ज़ख़ीरा करके रख लेना, इसका क्या हुक्म है, आज का ये दर्स पहले इसी जो है नुक्ते और इसी पॉइंट पर होगा। उसके बाद वक्त रहेगा तो इंशाअल्लाह और बाज़ दूसरे मसाइल आपके सामने ज़िक्र किए जाएंगे। सबसे पहली बात आज के दर्स की ये है कि आवामुन्नास में ये बात मशहूर है, और अहनाफ के यहाँ इसका बड़ा जो है ख्याल भी किया जाता है, बड़ा इस पर अमल भी किया जाता है कि वो कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक हिस्सा अपने लिए, अपने घर के लिए, और दूसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए, और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। ये जो है अहनाफ के यहाँ ज़्यादा हमने ये रिवाज देखा। दूसरे लोग भी देते हैं, रिश्तेदारों में भी तक़सीम करते हैं, गरीब मिस्कीन को भी जो है देते हैं, और खुद भी खाते हैं, लेकिन बाकायदा तक़सीम करने का उनके यहाँ तसव्वुर नहीं है। जिन सारे जो है इसमें वो भी तक़सीम करते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन जैसे ये जो है कि बराबर जो है तक़सीम करते हैं। ये लोग जो है बराबर 3 हिस्सों में तक़सीम करके गोश्त को, एक हिस्सा अपने रखते हैं, एक हिस्सा फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए, और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, बाकायदा बराबर तक़सीम करके। ऐसा कुछ तो बहरहाल न कुरान से साबित है, न हदीस से साबित है, और न ऐसा कुछ हमें हुक्म दिया गया है। जो है इस सिलसिले में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाज़ लोग जो है कुरान की आयतों, बाज़ आयतों से इस्तिदलाल करते हैं कि जो है कुरान में ज़िक्र है वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, यानी जो है ये कुर्बानी का जानवर जो है उसका गोश्त के बारे में ये बात है कि उसका गोश्त खाओ और खिलाओ, उनको भी जो सवाल करते हैं, मांगते हैं, और उन्हें भी खिलाओ जो सवाल नहीं करते हैं।
इसी तरह से कुर्बानी के जानवर के गोश्त के बारे में ये बात भी आई है, सूरह हज में है, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, कि तुम खुद भी उस जो है कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाओ और खिलाओ मिस्कीनों को, फकीरों को खिलाओ, ये जो है भूखे लोगों को, फकीरों को कुर्बानी का ये गोश्त। तो कुर्बानी का गोश्त खुद खाने का भी जो है जिक्र आया है, गरीबों और मिस्कीनों को खिलाने का भी आया है, सवाल करने वाले और सवाल न करने वाले सबको खिलाने का हुक्म भी आया है। तो इस लिहाज से बाज़ लोगों ने ये समझा है कि अब 3 जगहों पर उसे खुद खाना है, इसका हुक्म आया हुआ है, खिलाना है गरीब मिस्कीन को भी और जो सवाल नहीं करते हैं उनको भी। तो उसके लिहाज से उसकी 3 किस्में करके कुर्बानी के गोश्त को तीनों मदों में वो जो है इस्तेमाल करते हैं, खुद भी खाते हैं, गरीब मिस्कीन के लिए भी उसमें से 1/3 निकालते हैं और 1/3 अपने रिश्तेदारों को जो है देते हैं। ये सब जो है क्या है, अच्छा है कि आप खिलाओ लोगों को, अच्छा है कि आप रिश्तेदारों को भी दो, रिश्तेदारी में और मजबूती पैदा होती है, इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं, ताल्लुकात और अच्छे होते हैं। ये सब अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन बाकायदा उसे 3 हिस्सों में बराबर तकसीम करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कोई बात न कुरान में आई है न हदीस में आई है। लोगों का अमल है, बाज़ जगहों पर लोग अमल करते हैं, बाज़ जगह इसीलिए ख़ास इलाकों में ही इस पर अमल देखने को मिलता है, हर जगह भी ये अमल नहीं रहा है लोगों का। तो बस ये है कि लोग खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, रिश्तेदारों में तकसीम भी करते हैं, बल्कि ये रिश्तेदारी को निभाने का बड़ा अहम जरिया माना जाता है बाज़ जगहों पर। यहाँ तक हमने देखा है बाज़ जगहों पर कि अगर किसी जो है घर से किसी रिश्तेदार के यहाँ से कुर्बानी का गोश्त नहीं आया तो ये समझ जाते हैं कि शायद हमसे नाराज है, चाहे वो रिश्ते को काटना चाहते हैं। कभी कुर्बानी का गोश्त भेजा और अगर वापस कर दिया तो इसका साफ मतलब होता है कि रिश्तेदारी वो निभाना नहीं चाहते। तो इस तरह से कुर्बानी के गोश्त का लेन देन, यानी रिश्तेदारों को देना, उनके यहाँ से भी गोश्त आना, ये जो सिलसिला चलता है, मैं समझता हूँ कि ये रिश्तों की पायदारी और मजबूती का एक जरिया भी है। तो इसमें कोई हरज नहीं, अच्छा है। वरना ये भी एक मसला रहता है कि क्यों खामखा में ये भी भेजें फिर वो भी भेजें अपने घरों से, ये चीज़ें जो है होती है। तो उनके यहाँ भी कुर्बानी, इनके यहाँ भी कुर्बानी, अब ये भी भेजें फिर वो भी भेजें, आखिर क्या फ़ायदा है इसका? नहीं, ये फ़ायदा जो है बज़ाहिर नज़र आता है वो रिश्तों की पासदारी का फ़ायदा, जो कोई कम फ़ायदा नहीं है। रिश्तों को जोड़े रखने का हुक्म तो कुरान में भी है, हदीस में भी है, और अगर रिश्तों को जोड़ने का एक ज़रिया ये भी बनता है अगर ये, और ये भी उसका एक हिस्सा है, तो इसको भी जो है अमल करने में इस पर कोई हर्ज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है शरीयत में। ऐसा जो है करें, लेकिन बाकायदा 3 हिस्से बराबर तकसीम करना, असल जो है हमारी बात इसके बारे में हो रही है कि ये शरीयत में साबित नहीं है और ऐसा कोई हुक्म है भी नहीं। अब मसला ये है कि खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, गरीब मिस्कीन को भी देना है, ये हुक्म तो मौजूद है। अब कितना देना है किसी को, कितना खुद अपने खाने के लिए रखना है, और अब एक ही दिन में तो सब खत्म नहीं कर देंगे, तो कितने दिन तक उसको रख सकते हैं, खा सकते हैं, और कितना रख सकते हैं, इसके बारे में जो है चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक मर्तबा मदीने में ऐसा हुआ कि लोग बाहर से काफ़ी आ गए थे, तो और काफ़ी लोग कुर्बानी उनकी यहाँ नहीं हुई, और गरीब मिस्कीन लोग थे और खाने के मसाइल भी थे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम का भी मसला था, ये सारी चीज़ें थी। तो उसको देखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सादिर फरमाया
کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی اپنے یہاں قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام، کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ تم قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھو، اس سے میں نے تم کو منع کیا تھا۔ یہ اسی سال آپ نے منع کیا تھا جس سال جو ہے لوگ زیادہ آ گئے تھے، اور جو ہے ان سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ چونکہ حکومت وقت کا جو ہے کی ذمہ داری ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کی شکل یہ تھی کہ لوگ اپنے یہاں زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ رکھنے کے بجائے ان کو اندر تقسیم کریں، ان کو کھلائیں۔ تو آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا، جب وہ سال گزر گیا اور یہ جو ہے وہ جو وقتی ضرورت تھی، وقتی مسئلہ تھا، لوگوں کو ضرورت تھی، اس کے لحاظ سے جو آپ نے حکم دیا تھا اس کا کہ 3 دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ نہ کریں، پھر دوسرے سال آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، کھلاؤ، وَادَّخِرُوا، الفاظ اور بھی کیا ہے، وَادَّخِرُوا، اور ذخیرہ بھی کرو، یعنی ذخیرہ کر کے رکھو اپنے پاس، جو ہے رکھ لو گوشت بعد میں کھانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ بھی جو ہے ان الفاظ میں بھی آئی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو، اور جمع کر کے رکھو بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ آدمی خود بھی کھائے، اور خود کھانے میں یہ ہے کہ اب ایک ہی دن میں تو پورا کھا لے، کوئی ضروری نہیں ہے، تو خود کھانے کے لیے بعد میں بھی کچھ کھانے کے لیے اگر وہ رکھ لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ کی جو ممانعت تھی وہ اسی سال کے لیے تھی، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پھر اب وہ جو ہے قیامت تک کبھی یہ حکم نہیں آئے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آج بھی اور قیامت تک اگر کبھی بھی ایسے حالات کسی خاص علاقے میں ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی ضرورت زیادہ ہو، جہاں غربا اور مساکین کی کثرت ہو جائے، قربانی نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور قربانی کرنے والوں کی تعداد کم ہو، اور لوگوں تک کے گھروں تک قربانی کے گوشت کے پہنچنے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں آج بھی یہ حکم اور قیامت تک بھی یہ حکم رہے گا کہ جب ایسے حالات ہوں تو اس وقت یہ حکم ہوگا کہ لوگ اپنے یہاں قربانی کا گوشت زیادہ دنوں تک ذخیرہ کرنے کے بجائے غریبوں مسکینوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو کھلائیں، ان میں تقسیم کریں۔ جیسے ابھی حالات جو ہے، یعنی کبھی اس طرح کے حالات کسی خاص علاقے میں بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے پوری دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی جو ہے جو 2 سال سے بقرعید کا ٹائم آ رہا ہے کرونا کی بیماری کے جو ہے ان دنوں میں، اور کافی لوگوں کے لیے پریشانیاں رہیں، اور کافی لوگ جو کہ کی وجہ سے یا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ہے جاب لیس ہونے کی وجہ سے لوگوں کے، تو بہت سے لوگ جو قربانی کر سکتے تھے وہ ان جو ہے یا عام طریقے سے قربانی کیا کرتے تھے، ان سالوں میں، ان 2 سالوں میں ان کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی جب ہم کو اس طرح کی چیزوں کا علم ہو تو بجائے ذخیرہ کر کے رکھنے کے لوگوں میں تقسیم کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے تقسیم کریں، ان تک بھی گوشت پہنچے، وہ کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ کبھی بھی ایسے حالات کہیں بھی ہوں تو اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ بہت سارے علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے، فلڈ جسے آپ کو، لوگ جو ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے بھی کسی خاص علاقے میں اگر جو ہے بقرعید کے موقع پر یا اس طرح کے جو ہے جو اس کے پہلے بعد میں ایسا کچھ بھی مسئلہ اگر ہے سننے میں آیا ہے اور وہاں کے لوگ اس کی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں یا وہاں پہ لوگوں کو جو ہے پریشانیوں کا سامنا ہے، تو کیا ہے وہاں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، ان سے یہی بات کہی جائے گی کہ بھائی آپ لوگ جو ہے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں
وہ ان تک جو ہے قربانی کا گوشت پہنچائیں جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تو اپنے یہاں جو ہے فریج کو بھر لیں اور دوسرے لوگوں کے پاس گوشت کھانے کے لیے بھی نہ رہے۔ قربانی کے گوشت کی بات کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان تک جو ہے قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو اور اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو کسی بھی علاقے میں، تو وہاں کے لوگوں کو آج بھی یہ حکم رہے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کی بات کہی گئی ہے، یعنی قربانی کے گوشت کو رکھنے کی بات ہے، اور اس سلسلے میں صحابہ سے ثابت بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے قربانی کے گوشت کو جو ہے باقاعدہ سکھا کر کے رکھتے تھے، بعد میں جو ہے کھانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں فریج نہیں تھی تو وہی طریقہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے سے اب تک وہ چیز چلی آ رہی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ میں نے بنگلور میں دیکھا ہی ہے، ویسے اپنے یہاں یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملی، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ باقاعدہ اس کا کباب بنا کر کے اس کو جو ہے اپنا جو ہے لڑی کے طور پر پرو کر کے دھاگے میں جو ہے پرو کر کے اس کو دھوپ میں جو ہے سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو چھتوں پہ اس طرح کا دیکھنے کا مل جاتا ہے، حالانکہ فریج بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کباب بنا کر کے سکھانا اور بعد میں اسے تل کر کے کھانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل صحابہ بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، کیونکہ اب ان کے یہاں فریج تو تھی نہیں، تو وہ لوگ کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہے یہ جو ہے گوشت کاٹ کر کے سکھایا کرتے تھے اور پھر اس سکھے ہوئے گوشت کو بنا کر کے کھایا کرتے تھے۔ سوکھ جانے کے بعد پھر وہ خراب نہیں ہوتا ہے، یہ گوشت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ کننا نتزود لحوم الحج علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ یہ جو ہے جب حج کے لیے جاتے تو وہاں پر جو قربانی کی ہے حج میں، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو قربانی حج کے لیے، حج کے جو ہے موقع پر جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ لوگ قربانی کر کے گوشت کو سکھا کر کے لے کر کے چلتے، تو مدینہ پہنچنے تک راستے میں ان کا یہ توشہ ہوتا، یعنی یہی جو ہے بھون کر کے کھاتے ہوئے راستے میں وہ لوگ چلے آتے تھے۔ یہ کافی دنوں کا سفر ہوتا تھا نا اس دن کا، یعنی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ 4-5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، تو اس طریقے سے ذخیرہ کر کے کھایا کرتے تھے۔ اس کی کہیں کوئی حد تو نہیں آئی ہے احادیث میں کہ جو ہے کتنے دنوں تک قربانی کا گوشت رکھ کر کے کھا سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، جتنے دن تک بھی کوئی کھانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ لگاتار ہر ٹائم یہی گوشت کھا کر کے جلدی ختم کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے عام عادت ہوتی ہے کہ کبھی کھایا پھر دوسرے دن کچھ اور کھا لیا، یعنی برابر گوشت کھاتے ہوئے بھی جو ہے آدمی کا دل بھر جاتا ہے، تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ گوشت کو، قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھا، ذخیرہ رکھا، اور کچھ اور بھی سبزی دال وغیرہ بھی کھاتے رہے، بیچ بیچ میں قربانی کا گوشت بھی کھاتے رہے، اور اس طریقے سے یہ گوشت زیادہ مدت تک بھی چل جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، اس کی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کتنے دن تک ذخیرہ کر سکتے ہیں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، شریعت میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور ایسا کچھ جو ہے متعین نہیں کیا گیا۔ 3 دن والی بات تو ہم نے ذکر کی کہ وہ 1 سال ایسا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی سال کے لیے تھا، اور عام جو ہے حالات میں وہ حکم باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح کے حالات ہو کبھی تو پھر جو ہے اس طرح کا حکم بھی آ سکتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے قربانی کے گوشت کے تعلق سے، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ جب موقع آتا ہے قربانی کا تو لوگ بہت سوالات کرتے رہتے ہیں، یہ بہتر یہی ہے کہ اچھی طرح سے آدمی اس مسئلے کو پہلے سے سمجھ کے رکھے، تو اس موقع پر جو ہے سوال کرنے کی پریشانی سے آدمی بچ جائے گا۔ قربانی کا گوشت ہم نے آپ سے کہا خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اس کا حکم قرآن میں بھی ہے، اس کا حکم حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھے، اپنے پاس جمع کر کے رکھے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب غیر مسلموں کو دینا، کہیں حدیث میں الگ سے کوئی یہ لفظ تو نہیں آیا ہوتا ہے، لیکن اہل علم نے
قرآن کی آیتوں سے اور بعض احادیث سے یہ دلیل دی ہے کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے قربانی کا گوشت۔ جیسے ابن قدامہ نے، جو کہ بڑے مشہور حنبلی امام ہیں، یہ حنبلی جو ہے عالم ہیں، ان کی کتاب فقہ میں المغنی بہت مشہور کتاب ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وَيَجُوزُ أَن يُطْعِمَ كَافِرًا، جائز ہے کہ قربانی کا گوشت کافر کو کھلائے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیسے اہل علم نے اس سلسلے میں اس طرح کے فتوے دیے ہیں کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قرآن میں آیا ہے کہ جو سوال کرتا ہے اسے بھی کھلاؤ، جو سوال نہیں کر رہا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ یہ جو ہے فقیر مسکین کو کھلانے کا، سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے ان کو کھلانے کا جو حکم ہے یہ عام حکم ہے کہتے ہیں۔ اسی سے لوگ عام طریقے سے دلیل لیتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ یہ عام حکم ہے، تو اس میں غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، تو جیسے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں غیر مسلموں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود کھانا جائز ہے، پورا گوشت آدمی خود ہی کھا لے، کسی کو ایک جو ہے پیس بھی نہ دے، تو یہ بھی جائز ہے، اس کی اپنی چیز ہے یہ۔ تو ایسے ہی اپنی چیز وہ کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو جو ہے ہبہ بھی کر سکتا ہے، اور کافر کو ہدیہ دینا جائز ہے۔ وہ جو عام حدیثیں ہیں کافر کو ہدیہ دینے کے جائز ہونے کی، کافر کا ہدیہ لینا اور کافر کو ہدیہ دینا، اس طرح کی جو ہے حدیثیں موجود ہیں اور جواز کی دلیلیں موجود ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے قربانی کا گوشت بھی کسی بھی کافر کو دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے، یہ ضرور ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو محروم کر کے صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی غیر مسلم کو دینا اور اس کو ترجیح دینا اور اپنے مسلمان بھائی کو نظر انداز کر دینا، تو اس میں بہرحال کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان اگر ہے، اسلام پر صحیح معنی میں ایمان ہے اگر، اور صحیح جو ہے ایمانی اخوت موجود ہے اگر دل کے اندر، تو کبھی آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کھلاؤ، غیر مسلموں کو بھی کھلاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو بھی دو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے صرف ان کو دے دینا پورے طریقے سے گوشت، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو محروم کر دینا، محروم رکھنا، یہ بہرحال کوئی اسلامی طریقہ نہیں کہلائے گا۔ آپ سب کو کھلاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، اپنے ملنے جلنے والوں کو کھلاؤ، فقیر مسکین کو کھلاؤ، غیر مسلم کو کھلاؤ، سب کو جو ہے کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جائز ہے، ہم نے یہ مسئلہ سوچا کہ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں، اور اس کے لیے الگ سے دلیل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو چیز آپ کی ہے آپ مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں بعض جو ہے حالات ہوتے ہیں کہ ان حالات میں کسی غیر مسلم کو بعض چیزیں دینے کے تعلق سے ممانعت کی بات ہوتی ہے، تو وہ الگ جو ہے حالات ہوتے ہیں۔ قربانی کا یہ گوشت ان حالات میں داخل نہیں ہے، اور اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں، کھانے پینے کی چیز ہے، کھانے پینے کی چیز کو کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ قربانی کا گوشت ہے، خاص طریقے سے جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی کے وقت میں، قربانی کی جو ہے دن، غیر مسلم بڑی کثرت سے آتے ہیں، جو ہے دروازے پر گوشت مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ گوشت جو ہے ہم کو تو باقاعدہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس سال بھی ہم نے دیکھا، اس کے پہلے بھی جو ہے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو یہ لوگ باقاعدہ آ کے سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرنے والے کو تو دینے کے لیے قرآن میں آیا ہی ہے کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی، جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی، سب کو دینے کا ہے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی مسلم غیر مسلم کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تقیید نہیں ہے، اور ایسا کچھ جو ہے روایتوں میں بھی ذکر نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اصل چیز اباحت ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو چیز ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے کوئی صدقہ نہیں ہے،
ज़कात का मसला नहीं है। ज़कात का क्या होता है कि ज़कात ऐसी चीज़ है कि वो खुद इंसान उसका अपना मालिक नहीं है। कहाँ ज़कात खर्च करना है वो अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन कर दिया है, क्योंकि ज़कात जिसकी निकलती है, जिसके माल की, तो अब वो ज़कात उसका माल नहीं रहता है, बल्कि ये माल उन 8 जगहों पे खर्च होगा जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। तो वो उसकी असल मिल्कियत वहाँ नहीं रह जाती है ज़कात के मामले में। लेकिन ये कुर्बानी का गोश्त ये कोई ज़कात नहीं है, याद रखिएगा। बल्कि ये हमने आपसे कहा कि पूरा के पूरा गोश्त अपने पास रख करके खुद ही खा जाए, वो भी जायज़ है, कोई ममानत नहीं है इसकी, ये भी मना नहीं है शरीयत के अंदर। तो इसी पॉइंट को नोट में रखिएगा कि जो चीज़ हमारी खुद की हो, हम किसी को भी हिबा कर सकते हैं, हदिया कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी दलील की ज़रूरत नहीं पेश आती है। तो यही दलील खुद उसके लिए काफ़ी है। अब मसला है कि हदिया और हिबा किसी गैर मुस्लिम को किया जा सकता है कि नहीं, तो ये भी जायज़ है। हदिये के मसाइल जब आएंगे तो इंशाअल्लाह उस मौके पर ये तफसील भी आपके सामने ज़िक्र की जाएगी। बाद रिवायतों में जो ये बात है कि हम किसी मुशरिक का हदिया कबूल नहीं करते या मुशरिकीन का हदिया कबूल करने से हमें मना किया गया, जो इस तरह की जो बातें हैं उन अहादीस की तवजीह भी इंशाअल्लाह जब वो मौका आएगा हदिया और तहाइफ जो है गैर मुस्लिमों को देने के ताल्लुक से, तो वो मसाइल भी इंशाअल्लाह आपके सामने थोड़ी तफसील के साथ जिक्र किए जाएंगे। यहाँ सिर्फ क्या है, इतना याद नोट रखिए कि किसी भी गैर मुस्लिम को हदिया और तोहफा देना जायज़ है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, आपके सहाबा ने दिया है और आपने कबूल भी किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल भी किया है, गैर मुस्लिमों का हदिया आपने कबूल भी किया है। मुख्तलिफ मौक़ों पर जो हदायत तहाइफ आए हैं उसे आपने कबूल भी किया है। तो ये चीज़ जो है ज़हन में रहे, कुर्बानी का गोश्त भी उसमें दाखिल है। अब एक मसला है कुर्बानी के जानवर की स्किन जो है, चमड़ा, खाल, इसका इस्तेमाल क्या हो। तो इस सिलसिले में चंद उसूली बातें आपके सामने जिक्र करता हूँ। पहली बात यह है कि कुर्बानी के जानवर की कोई भी चीज़ बेचना जायज़ नहीं। कोई भी चीज़ बेच करके पैसा खुद आदमी इस्तेमाल में लाए, कोई भी चीज़ बेचना जायज़ नहीं है। चाहे उसकी जो है अतड़ी हो, यानी जो उसके अंदर के जो है चीज़ें होती हैं, या जो है उसकी सींग हो, उसकी हड्डियां हो, उसका चमड़ा हो, स्किन जो है, कोई भी चीज़ जो है बेचना जायज़ नहीं है। बेचना का मतलब, जायज़ नहीं का मतलब कि वो बेच करके वो कीमत जो है आदमी अपने इस्तेमाल में लाए, ये जायज़ नहीं है। लेकिन हमने अभी आपसे कहा कि खुद इस्तेमाल कर सकता है, ये जायज़। पूरा गोश्त खुद ही खा जाए कोई मसला नहीं, लेकिन गोश्त बेचे ये जायज़ नहीं है। गोश्त किसी को उजरत में दे ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो फिर जो है वो बेचने के ही हुक्म में आ जाए। इसी तरह से उस कुर्बानी के जानवर का चमड़ा, उसकी खाल आदमी खुद इस्तेमाल कर ले, ये जायज़ है। हमने पहले आपको कहा और बार बार हम बात आपसे ये कह रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर ये कोई सदका नहीं है, ये कि जो आदमी खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं। ये जो है कुर्बानी है, एक मुस्तकिल इबादत है, ये सदका नहीं है। अब जो है कुर्बानी के जानवर की हर चीज़ तो खुद इस्तेमाल कर सकता है, कोई मसला, यहाँ तक कि उसका चमड़ा भी वो खुद से अगर घर में दबागत दे करके इस्तेमाल करना चाहे तो ये जायज़ है। यानी मतलब क्या, उस जमाने में ऐसा होता था कि लोग जो है खुद ही चमड़े को दबागत दे करके, दबागत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था उसके लिए, अरबी में दोबेगा जो है ये फ़ेल हदीसों में आया हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती थी उस ज़माने में, उसी को लगा करके उसको साफ कर लिया करते थे, फिर उसको इस्तेमाल करते थे। तो उसके चमड़े के जूते भी बनते थे, सॉक्स भी बनते थे। उस ज़माने के जो खुफ जो कहलाते हैं वो चमड़े के ही हुआ करते थे। सॉक्स जो है दस्तरखान भी बनाते थे, यानी उसको ऊपर खाना रख करके खाने के लिए दस्तरखान के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। और कई मौक़ों पर जो हदीसों में इसका जिक्र आया हुआ है, दस्तरखान जो बिछाया गया वो चमड़े का दस्तरखान था। मशकीज़ा बनाते थे लोग उस ज़माने में। मशकीज़ा जो है ये, जिसे हम उर्दू में छागल भी कह लेते हैं,
ये पानी रखने का एक जो है चमड़े का बर्तन होता था, ऊपर से पानी भरते थे, नीचे से भी उसमें एक जो है बना लेते थे सुराख जो है उसको बंद करने का, खोलने का, खोल करके नीचे से पानी पी लिया करते थे या पानी निकाल लिया करते थे। उसपे पानी ठंडा रहता था, उसमें जितनी भी हवा लगती है ना पानी खूब ठंडा रहता है उसमें। तो सख्त गर्मी के मौसम में भी उसमें पानी ठंडा रहेगा, वरना गर्मी के मौसम में पानी बाहर रखते ही पानी गर्म हो जाया करता है। और मदीने की जो गर्मी थी, मक्के के इलाके की जो गर्मी है, वो आप जानते हैं, जो लोग भी गए हैं वो जानते हैं कि बहुत सख्त गर्मी होती है और चीजें जो पानी वगैरह ये बहुत गर्म हो जाएगा, ठंडे पानी पीने की ख्वाहिश होती है। आजकल तो फ्रिज है, हर तरह की सहूलतें हैं, उस जमाने में यही चीजें होती थी। तो चमड़े का लोग एक बर्तन बनाते थे जिसको अरबी में किरबुल कहते थे, जो है ये हम उर्दू में मशकीजा भी कह लेते हैं, छागल भी कह लेते हैं। ये चमड़े का एक बर्तन होता था जिसमें पानी ये लोग जमा करते थे और इसको कहीं भी बांध करके ऊपर जो है रख देते थे, उसको हवा लगती थी और उसमें पानी जो है बहुत ठंडा रहता था। ऐसे ही किताबों की जिल्द वगैरह के लिए भी लोग चमड़े का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो खुद अगर आदमी इन सब चीजों में इस्तेमाल कर ले तो ये जायज है, लेकिन ये जायज नहीं है कि उसको बेचे और बेच करके कीमत खुद इस्तेमाल कर ले, ये जायज नहीं है। बेच करके कीमत से फायदा उठाना ये जायज नहीं है। इस सिलसिले में एक हदीस आती है, कतादा बिन नुमान वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तबीउ लुहूमल हदी वल अदाही, हज के जानवरों की कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और कुर्बानी के जानवरों का गोश्त मत बेचो, वकुलू और खाओ, व तसद्दकू और सदका करो, वस्तमतिउ बिजुलूदिहा और उसके चमड़े से भी फायदा उठाओ, वला तबीउहा चमड़े को बेचो मत। तो इस तरह की जो है अहादीस में सराहत मौजूद है कि चमड़े से, कुर्बानी के जानवर के चमड़े से खुद फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाना जायज है, लेकिन उसका बेचना और बेच करके कीमत खुद इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। शरीयत में इसकी जो है गुंजाइश नहीं रखी गई है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक मसला होता है कस्साब की उजरत का। कस्साब से मुराद वो कसाई जो आकर के ज़बह करके जो है जो खाल वगैरह निकालता है और जो है गोश्त को जो है काट के पीस पीस करके चला जाता है, जिसकी वो उजरत लेता है। तो इस कसाई को, कस्साब को जो आया था हमारे पास कुर्बानी के जानवर को जो है उसमें वो मदद करने के लिए कि चूंकि हर कोई नहीं कर पाता है ये या नहीं करना चाहता है, तो वो जो है इस सिलसिले में कस्साब से मदद लेता है और आकर के कस्साब करके जाता है। तो कस्साब को उजरत के तौर पर कुर्बानी का गोश्त दे देना, उजरत के तौर पर कुर्बानी के जानवर की खाल दे देना या उसके ताल्लुक से कोई भी चीज जो है उसको दे देना, चाहे हड्डी वगैरह या कोई भी इस तरह की चीजें हैं, ये जायज नहीं है। क्योंकि बेचना जायज नहीं है, बेच करके कीमत से फायदा उठाना जायज नहीं है। ऐसे ही कस्साब को उजरत के तौर पर भी नहीं दे सकते ये चीज, नहीं ये जायज नहीं है। हाँ ये कर सकते हैं कि आप उसकी जो भी उजरत बनती है पूरी उजरत दे दीजिए, और आप जानते हैं कि वो गरीब मिस्कीन है तो साथ में खाल भी दे दिया कि चलो ले जाओ, इसको भी फायदा आप उठा लो, जो किसी गरीब मिस्कीन को देना है मुझे आप ही लेके चले जाओ। लेकिन ये कब, जब आप उजरत मुकम्मल दे चुके हो। इसको नोट कर लीजिएगा, उजरत मुकम्मल, उजरत दिया है लेकिन क्या है उसको पता है कि चमड़ा मुझे ही दे देते हैं तो थोड़ा कम में ही तैयार हो गया, इनके यहाँ से चमड़ा भी मिलता है, गोश्त भी मिलता है, तो जरा जो है कम में ही तैयार हो गया। तो अगर ये कहीं ना कहीं फिर जो है क्या है, चोर दरवाजे से उजरत का मसला आ जाता है। इसीलिए कुर्बानी के जानवर का गोश्त आप दे सकते हैं कसाई, लेकिन इसके अंदर कहीं चोर दरवाजा भी निकल सकता है कि उस कसाई को ये पता है कि ये साहब कुर्बानी हमसे करवाते हैं
हमसे जो है कुर्बानी के जानवर की खाल जो है उतरवाते हैं और जो है उसके जो है बोटियां करवाते हैं हमसे, तो हमको काफी गोश्त भी देते हैं, किलो 2 किलो जो है दे दिया करते हैं, तो चलो इनका कम नहीं कर देंगे। तो ये चीज, इसकी गुंजाइश नहीं है। मुकम्मल उजरत देने के बाद, जैसे आप दूसरों को भी कुर्बानी का गोश्त देते हो, उसको भी अपना कुछ कुर्बानी का गोश्त दे दिया, तो ये जायज है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनको कुर्बानी का गोश्त देना ही नहीं चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि यही मसला है उसमें कि उजरत कम लेगा आदमी, पहले से पता है, हर साल ऐसा होता आ रहा है, तो इसी को सामने रख करके उजरत कम ले रहा है कि इनके यहाँ से गोश्त भी मिल रहा है, तो गोश्त को भी उसी उजरत में वो, उसके यहाँ कैलकुलेशन है ये, अगरचे कि आपके जहन में ना, तो ये कैलकुलेशन अगर बन जाएगा तो फिर ये जायज नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस पे एहतियात का पहलू ये है कि उसको सिरे से दो ही मत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे दिया कुर्बानी का गोश्त तो जायज नहीं है, नहीं, ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ये चीज जो है कैलकुलेशन में आ सकती है, और जहां इसका डर है तो वहां नहीं देना चाहिए। जहां इसका कोई डर नहीं है, पूरी जो है उसको कुर्बानी के जानवर के जो भी जो है, यानी जो भी जानवर को ज़बह करके उसका गोश्त जो है बोटी बोटी करने तक की जो भी उजरत है, वो पूरी उजरत उसको दे रहे हैं, और उसके बाद अगर गोश्त दे रहे हैं तो कोई हरज नहीं। जैसे हम दूसरों को कुर्बानी का गोश्त खिलाते हैं, उस जो है कसाई को भी खिला सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं कि वो ले जाए घर वालों को खिलाए, लेकिन उजरत के तौर पर मैंने आपसे कहा कि देना, या कहीं कैलकुलेशन में अगर ये उजरत के तौर पर चीज आ रही हो, ऐसा कोई शक हो, तो फिर उस शक से बचना ही बेहतर होता है। दामा यरीबु कैला माला याद, जो बात जिक्र की गई है फायदे के तौर पर, एक ज़ाब्ते के तौर पर, कि जहां शुबहा होता है तो शुबहे की चीज को छोड़ करके ऐसी चीज की तरफ आ जाओ जिसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो ये बात थी कसाई को देने के तरफ। कसाई को कोई भी चीज कुर्बानी के जानवर की नहीं देंगे उजरत के तौर पर, नहीं देंगे, और जहां उजरत की वजह से ही, यानी उस चीज की वजह से ही उजरत पे कम जो है, उजरत लेने पर राजी हो जाने का अगर कोई मामला हो रहा हो, तो वहां भी इससे बचना चाहिए फिर जो है, तो ये जायज नहीं है। हाँ, ये जायज है कि आदमी ने बेच दिया, वो जो है कुर्बानी के जानवर की खाल है, घर में ही पड़ी है, कहीं कोई नजर भी नहीं आ रहा, किसको देंगे, तो क्या किया, बेच दिया, क्योंकि ज्यादा देर तक रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो अच्छे दाम से खरीद रहा था तो उसको बेच दिया, तो अब वो कीमत जो है ना खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी भी गरीब मिस्कीन को दे देंगे, तो ये कोई हरज नहीं है इसमें। एक तरह से कह लीजिए कि गरीब मिस्कीन का ही हक था, जो हमने जो है उनकी तरफ से सहूलत के तौर पर जो है खुद बेच करके उन तक पहुंचा, पैसा जो है पहुंचा दिया, कोई हरज नहीं है इसमें। अब एक मसला ये होता है कि हमारे यहाँ इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, आम तरीके से लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी के जानवर के खाल जो है सबसे ज्यादा मुस्तहिक इसके मदरसे वाले ही हैं। अक्सर चीजों के बारे में लोगों ने यही समझ रखा है कि मदरसे वाले ही क्या हैं, सब उसके मुस्तहिक हैं। अब जो है उसकी जगह कुछ जो है सेंटर्स जो कायम कर लिए हैं लोगों ने, वो भी समझते हैं कि ये सेंटर्स जो है उसके असल मुस्तहिक है। अभी हमने आपसे कहा ये गरीब मिस्कीन का को देने की बात है, या तो आदमी खुद इस्तेमाल कर ले या गरीब मिस्कीन को दे। ये भी कहीं नहीं है कि दावा पर्पस, गैर दावा पर्पस, उस पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। गरीब मिस्कीन को दे दे। मदारिस में चमड़े के देने का रिवाज, खालों को देने का रिवाज, ये पहले से चला आ रहा है हमारे इस मुल्क में, जिसकी वजह ये रही है कि मदारिस में अक्सर वही बच्चे पढ़ते रहे हैं जो गरीब मिस्कीन होते हैं, जिनके खाने पीने का इंतजाम मदरसे वाले करते हैं। और मदरसे वाले कहाँ से करते हैं, यही लोगों से जो ज़कात का माल वसूल करते हैं, ये जो है चमड़े जो है जानवरों की खाल जो वसूल करते हैं, अच्छी खासी रकम उससे हासिल हो जाती है उनको। खास तरीके से बड़े शहरों में, बड़े इदारों को बहुत अच्छी खासी जो है रकम इससे, अब जब चमड़े की कीमत अच्छी खासी थी, ज़्यादा थी, तो अच्छी खासी रकम भी आ जाती थी। अभी तो खैर चमड़ा ये बिल्कुल बेभाव बिकता है,
तो इतनी ज़्यादा इससे आमदनी नहीं होती है उनको, लेकिन पहले बहुत अच्छी खासी आमदनी होती थी। तो मैंने आपसे कहा कि चूंकि मदरसे में गरीब मिस्कीन तलबा ही पढ़ते थे, जिनके पास जो है स्कूलों में पढ़ाने की फीस नहीं होती थी ना, ऐसे ही वालिदैन जो है मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसीलिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, उनसे कोई पैसा नहीं लेते थे, बल्कि उनको हर चीज, किताबें वगैरह सब कुछ जो है उनको मदरसे से ही फराहम करते थे। ये तरीका था। और उसी वजह से अहले इल्म चमड़े की जो है जानवरों के चमड़े को, जानवरों के खाल को, कुर्बानी के जानवरों के खाल को मदरसों में देने की बात कहते थे, और मदरसे वाले उसूल भी करते थे। ये असल में गरीब मिस्कीन को पहुंचाने का ही एक जरिया था, ये कि इस तरीके से गरीब मिस्कीन तक पहुंच जाएगा। अच्छी बात थी, इस पर मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मदरसों के हालात बदल चुके हैं। अब मदरसों के जिम्मेदारान में भी वो अमानतदारी नहीं रही है। और ये तो मदरसों का हाल है। अब मराकिज वगैरह जो कायम किए गए मुख्तलिफ सेंटर्स, वहाँ तो खैर और भी बुरा हाल है, लेकिन मैं मदरसों की बात कर रहा हूँ कि अब वहाँ के जिम्मेदार भी वो जो है मुखलिस और यानी पाई पाई का हिसाब रख करके सारी जो चीज़ें बच्चों पर खर्च हो, तलबा पर खर्च हो, गरीब मिस्किन तलबा पर खर्च हो, वो जो उनका जहन था, वो जो उनकी सोच थी और जो उनका तरीका था, अब वो चीज़ नहीं रही है। अब तो आप दे दीजिए, अब तो कोशिश ये रहती है कि जितना भी आ जाए वो सब जो है मदरसे के नाम पर वो समझते हैं कि सब हमारा हक है, जिम्मेदार लोग समझते हैं, फिर वो जैसे चाहते हैं वैसे खर्च करते, कोई पाबंदी नहीं करते कि ये जो खाद है लोगों ने गरीब तलबा के लिए दी है, गरीब तलबा पर ही ये खर्च हो, इसका कुछ भी लिहाज नहीं करते, कुछ भी ख्याल नहीं करते। अमानतदारी नहीं है, मैंने आपसे कहा, बिल्कुल जो है अमानतदारी नहीं होती है। और बिल्कुल जो है इसको लोग ऐसे ही जो है करते भी हैं, कुछ भी उसका ख्याल भी नहीं करते। अल्लाह ताला का कोई खौफ और तकवा भी नहीं है उनके दिलों में। अक्सर मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं वो इस तरह की तकवा की सिफत से भी महरूम हैं। जो देखने को मिला है, जो तजर्बा कहता है, जो है हमारी ज़िंदगी का तजर्बा है, वो तजर्बा हम बता रहे हैं आपके सामने। इसीलिए हम इसी को बेहतर समझते हैं कि अब जो है बहुत ज़्यादा ये ख्याल करके कि मदारिस के तलबा ही उसके जो है मुस्तहिक हैं, मदरसों को जो है खाल ऐसे ही दे देना और इसका ख्याल ना करना कि मदरसे का जिम्मेदार कैसा है और मदरसे के जिम्मेदार के पास अमानतदारी है या नहीं, तकवा और लिल्लाहियत है या नहीं, अल्लाह ताला की यहाँ जवाबदेही का एहसास और शऊर है या नहीं, उसका ख्याल किए बगैर दे देना, मैं इसको सही नहीं समझता, बल्कि उसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी रहे कि गरीब मिस्कीन तलबा ही अब सिर्फ मदरसों में नहीं पढ़ते, अब तो अच्छे खासे मालदार तलबा भी आते हैं, और उसमें भी ऐसे ऐसे मालदार तलबा होते हैं जो कि फीस दे करके पढ़ते हैं। और अक्सरियत अब जो है इस तरह की जो है बच्चों की होने लगी है जो फीस बाकायदा देते हैं। तो अब जो बच्चों के लिए खाने पीने के इंतजाम के तौर पर ही तो ये खाल जमा करते थे मदरसे के लोग, अब तो वो चीज भी बहुत कम रह गई है, तो बहुत कम रह गई है। और फिर इन जिम्मेदारों के पास कोई अमानतदारी नहीं होती कि जिस मद के लिए हमने जो चीज जमा की है उसी में उसको खर्च किया जाए, दूसरी जगहों पे खर्च ना किया जाए, कोई इसका लिहाज नहीं होता। इसीलिए एहतियात मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि आप अपने आसपास के जो गरीब मिस्किन अगर हो तो आप चाहे तो खुद बेच करके, नहीं तो जो है किसी आदमी को दे, किसी तंजीम को दे जो बेच करके गरीबों तक पहुंचा दे, तो ये जो है इसका ख्याल करें, ये ज्यादा बेहतर है ऐसे ही आंख बंद करके मदरसे को दे देने के मुकाबले। और ख़ास तरीके से ऐसे मदारिस, अब तो ऐसे मदारिस भी हैं कि जो होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जा कर के जो है बाकायदा जो है यानी ख़ास ख़ास डिशें जा कर के खाना और सफ़र करके जाना ऐसी जगहों पर खाने के लिए, वो सब भी होता है। अभी तो हमने देखा जो है इतना सब कुछ है। अब तो अब उनको जाकर के जो है आप जो है कुर्बानी की खाल के पैसे जो है उनको मिले या उन तक पहुंचे या उनके नाम से दे दें आप, चाहे उनको पहुंचे या ना पहुंचे,
तो ये बात ठीक नहीं होगा। हवाई जहाज से सफ़र करके मदरसे में जाते हैं आप जो है तालीम हासिल करने के लिए, और साल में कई मरतबा सफ़र करेंगे तो हवाई जहाज से सफ़र करेंगे। और आप कहें फिर जो है वो गरीब मिस्किन, हाँ, कुछ तलबा गरीब मिस्किन होते हैं, अभी भी वैसे लोग हैं, लेकिन उनके नाम पर तो ज़कात की और जाने कितनी रकमें जो है पहले भी इकट्ठा हो चुकी हैं, और उसका भी कोई बहुत ज़्यादा जो है यानी ख़्याल नहीं रहता है कि जो ज़कात की रकम वसूल हुई वो ख़ास जो है उनके खाने-पीने इन गरीब तलबा पर ही खर्च हो, उसका भी कोई ख़ास जो है एहतमाम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे मसाइल हैं, आखिरत में जवाबदेही का वो एहसास नहीं है। उलमा जो बहुत सारे फ़तवे भी दे दिया करते हैं, उनके यहाँ भी वो वरा और तक़वा नहीं है, जो होना चाहिए एक मुफ्ती के अंदर। इसलिए मेरे भाइयों, हमें खुद से चाहिए कि हम इसका ख़याल रखें और अपनी ही निगरानी में अगर किसी गरीब मिस्कीन तक ये खाल पहुँचा दें, तो ये सबसे बेहतर है। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों, जो कुर्बानी के मसाइल से ताल्लुक़ रखती थी, वो हमने आपके सामने पेश कर दिए। वक़्त हो रहा है, तो आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे फिर आपके सामने मय्यत की तरफ से कुर्बानी जायज़ है या नहीं है, वो मसला थोड़ी तफ़सील के साथ आपके सामने आगे पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।